ऑप्टिक्स। इस समय हम लोगों को ये रिफ्रैक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लाइट जाती है। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट चेंजेज इट्स पाथ, जो उसका रास्ता है वो बदल जाता है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी व्हेन लाइट enters from one medium to another medium, it changes its direction of propagation. This phenomenon is known as refraction. In refraction, the lights coming from one medium to another medium, this is the first medium, this is the second medium. Light comes from here to here in this medium. If this medium is a rarer medium, then the ray will go away from the normal. If it is denser, optically denser, then the ray will come nearer to the normal, that is bent towards the normal. The angle in the first medium is known as angle of incidence, and the angle in the second medium is known as angle of refraction. The ratio of the angle of incidence and angle of refraction is constant for these two media. This is called refractive index. If ray comes from here to here, this is called refractive index of the second medium with respect to the first. The refractive index of medium 2 with respect to 1 is represented as 1 mu 2. Sometimes it is written 1 n2 and sometimes it is 1 mu 2. n भी प्रयोग करते हैं और mu का इस्तेमाल भी करते हैं। तो 1 mu 2 means the refractive index of medium 2 with respect to 1. And this is written as sin I, the angle in the first medium, sin R, the angle in the second medium, equal to this ratio of these two, sin of these two angles. This is called Snell's law. इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। This is called Snell's law. Actually, the bending of rays is due to the change in the velocity of the light rays. When light enters from one medium to another medium, its velocity changes. Therefore, this is also equal to the ratio of the velocity in the first medium to the velocity in the second medium, v1 upon v2. Because frequency remains constant, frequency and phase does not change. The frequency and phase does not change, and therefore wavelength changes. Therefore, this is equal to lambda 1 upon lambda 2, wavelength of the light wave in the first medium to the wavelength in the second medium. Now suppose the ray is emergent in the फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट से सेकंड में आई और सेकंड से फिर फर्स्ट में निकल गई, यानी हियर एंड हियर द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे बोथ आर इन द सेम मीडियम. Then at this point at the interface of 2 to 1, refractive index of 1 with respect to 2, because the ray goes from 2 to 1. Therefore, the sine of this angle to the sine of this angle is refractive index of 1 with respect to 2. The refractive index of 1 with respect to 2 is equal to 2 mu 1.
refractive index 1 with respect to 2 is equal to sine in the first medium, that is this is also equal to r, this is alternate angle, therefore sin r upon sin r. We can write it like this, 1 upon sin r को नीचे कर दें, sin I upon sin r, और we know that sin I upon sin e is equal to 1 mu 2. It means 2 mu 1 is equal to 1 mu 2. If the direction of the ray is reversed, the refractive index is also, this is also inverse. This is 2 mu 1, this is 1 mu 2, 1 upon 1 mu 2. अब here 1 mu 2 and 2 mu 1 is equal to 1. When the ray, incident ray is in one medium and the emergent ray is in the same medium, then the product of the refractive indexes of these interfaces is equal to 1. 1 mu 2, 2 mu 1 is equal to 1. Similarly, if there are, suppose there are 1, 2, 3, and then again the fourth medium is also the first medium. The ray is incident in the first medium and it is emergent in the first medium. Then at the first interface, the refractive index is 1 mu 2. Here it is 2 mu 3 and here it is 3 mu 1. It means 1 mu 2, 2 mu 3, 3 mu 1 is equal to 1 according to this. कि अगर उसी मीडियम में इंटर करती है, उसी मीडियम में निकलती है, तो जितने भी इंटरफेसेस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे सभी मीडियम पर सबका प्रोडक्ट एक के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 1. फ्रॉम हियर 2 mu 3 is equal to 1 upon 1 mu 2 into 3 mu 1. अकॉर्डिंग टू दिस 3 mu 1 को ऊपर ले आएंगे, तो जैसे 1 mu 2 को ऊपर ले आए तो 2 mu 2 1 हो जाता है, इसको जो ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 mu 3. अब 1 mu 3 and 1 mu 2, here both is the first medium. Refractive index of 3 with respect to 1, refractive index of 2 with respect to 1. Therefore, this is 2 mu 3. This is 2 mu 3. Refractive index of 3 with respect to 2. So, we can use it to find out the refractive index of one medium with respect to the other medium which we want to calculate. For example, we know A mu G, that is refractive index of Kaach with respect to air is 3/2, suppose it is given here, and refractive index of water is 4/3 with respect to air. Here it is with respect to air, here with respect to air. We want to find out the refractive index of glass with respect to water. यानी we want to find out W mu G. W mu G is equal to A mu G upon A mu W. G W or A is common, therefore this is equal to 3/2 और नीचे है A mu W is 4/3 which is equal to 9/8. This is refractive index of glass with respect to water. We know the refractive index of glass with respect to air. We know the refractive index of water with respect to air, and therefore when the glass is put in water, the refractive index is equal to 9/8. Now suppose there is a refracting medium, this is water or a glass slab, anything. We have to find out the refractive index of this in terms of its thickness or its height or depth. Suppose it's water.
There is a object O. One light ray comes normal to this interface. This is the interface. Here it is here, and suppose here it is a medium. So this is normal, and therefore without changing its interest in the second medium, let us have another ray which falls obliquely on this interface, and the angle of incidence is I. Because this is rare medium, this is denser medium, therefore this goes away from the normal. This is R. Now just produce it. It just intersects at O dash. O dash is the image of O. When we see from outside, we see O at O dash. This is the image of O. So when we see from here, this object seems to be here at this point. This depth is HA, apparent depth, and this is the real depth. We have to find out the refractive index of this medium. Now here, this angle is equal to this angle. This is angle of incidence in the denser medium. This is angle of incidence. This is alternate angle. This angle and this angle both are equal. These are corresponding angles. These two are parallel. Up here, from this triangle AOB, sin I is equal to AB upon OB. From this triangle AO dash B, sin R is equal to AB upon O dash B. We have to find out the refractive index of second medium with respect to first medium, that is refractive index of this medium with respect to here. So A mu medium, this is equal to 1 upon medium mu A, यानी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ईयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, और ये बराबर हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर, बिकॉज द रे इंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. तो म्यू ए यम म्यू ए बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर उलट के ऊपर चला गया. अब इनकी वैल्यूज हम रख देते हैं, साइन आर और साइन आर के निकाल चुके, ए बी अपॉन ओ डैश बी, ओ बी अपॉन ए बी से भी कैंसिल हो गया, आपका ये बचा ओ बी अपॉन ओ डैश बी. अब these angles are small and therefore this distance is equivalent to this distance, and this distance is nearly equal to this distance, not exactly equal to but nearly equal to. I and R are small angles. Any angle I and angle R are small, इसलिए OB is nearly equal to OA and O dash B is equal to nearly equal to O dash A. रख दिया. Therefore A mu m is equal to OA upon O dash A, that is OA is a real depth or real height of the medium, and this is the apparent height of the medium. So this is the refractive index of this medium. We know that refractive index of any medium is equal to real depth upon apparent depth. So we can calculate the apparent depth. For example, there are say, 3 liquids filled in a vessel. mu1, mu2 and mu3 are their refractive indices with respect to air. H1, H2 and H3 are their depths. Then the apparent depth HA will be equal to H1 upon mu1 here, H2 upon mu2 here, H3 upon mu3 here. This is the apparent depth, which suppose there is a particle, it will seem to be at this depth when seen from here.
रहेगा यहाँ, लेकिन वो का कितने ऊपर उठकर दिखाई पड़ेगा, इन सब का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा और इतना ऊंचा हमको दिखाई पड़ेगा। दैट इज दिस द अपरेंट डेप्थ ऑफ द दिस मनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री मीडिया। अब चाहे लिक्विड्स हों या एक दूसरे के ऊपर रखे हुए ये अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास स्लैब्स हों, अगर यहाँ पर कोई चीज़ है तो कितनी वो ऊपर हमको दिखाई पड़ेगी, गहराई उसकी कितनी होगी, उसको इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं कि व्हेन द रे इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, वेदर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या नॉर्मल से दूर हो जाएगी। कितना मुड़ जाती है, दैट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सपोज दिस इज डेंसर मीडियम, दिस इज ए रेयर मीडियम and the ray is coming, it bends towards the normal. This is the angle of refraction, this is angle of incidence. इतना एंगल का इसमें डेविएशन हो जाता है, इतना ही डेविएट हो जाती है इधर को, आई माइनस आर। दिस इज आई, देयरफॉर दिस इज आई, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, and this is r, this is I minus r. We have to find out this lateral displacement mp. Here we know from this triangle ON is the thickness of this glass slab or any medium, T this is thickness. From this triangle we know that OP is equal to T upon cos R. ON upon OP is equal to cos R, therefore OP is equal to ON upon cos R. Because ON is equal to T, therefore T upon cos R. So this is T. T upon cos R is this distance OP. Now from this triangle, from triangle OPM, lateral displacement MP is equal to OP sin I minus R. MP upon OP is equal to sin I minus R, and therefore MP is equal to, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो दिस इज इक्वल टू OP sin I minus R. OP sin I minus R. OP के वैल्यू हम रख देते हैं, OP के वैल्यू निकाल चुके, T अपान कास R यहाँ रख दिया, तो T sin I minus R अपान कास R. T sin I minus R upon cos R is the lateral displacement of the refracted ray when enters in second medium. अब ये यहाँ तो ये इधर को नॉर्मल के निकट आ रही है, दूर भी जाएगी, चाहे दूर जाए चाहे निकट आए, लेकिन लेटरल डिस्प्लेसमेंट की कोई इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। नाउ क्रिटिकल एंगल, we know that when a ray enters from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. Suppose this is denser and this is rarer and this is denser, then it bends towards the normal. Yani I is greater than R. Here I is greater than R. I is greater than R. But if reverse of this, that is this is denser medium and this is rarer medium, and the ray goes from denser to rarer, so it will go away from the normal. Then this is smaller and this is greater. Here I is smaller and R is greater. I is smaller and R is greater. So when ray enters in the rarer medium from the denser medium, it go away from the normal. अब here this is the rarer medium, this is denser medium. As we increase this angle, the angle of refraction also increases,
and the angle in the denser medium, the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction is 90 degrees. That is the refracted ray grazes along the interface, इसी के को स्पर्श करती हुई चली आती है. It grazes this interface. Then this angle R is equal to 90. This is called critical angle. Critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree. This is called critical angle. अब here the refractive index of this medium, denser medium, यानी 1 μ2 will be equal to, अब ये उल्टा हो जाएगा, sin this upon sin this, that is sin 90 upon sin c, and therefore we can say that refractive index 1 μ2 is equal to 1 upon sin c. So when the ray enters in the rarer medium from denser medium and it is critical angle, at critical angle the incidence, angle of incidence is equal to the critical angle, then refractive index is equal to 1 upon sin c, because when it is critical angle then sin 90 is equal to 1. Critical angle for two medium is 6. For water in the air it is 48.75 degrees. Glass in the air is 41.14 degrees. Diamond 24.4 degrees. For diamond is 24.4 degrees. Therefore, diamond is cut in such a way that the angles are equal to greater than 24.4 degrees. And therefore, when the ray enters the diamond, it always the angle of incidence is larger than 24.4 degrees, and therefore the light gets internally reflected. बाहर नहीं निकल पाती, लाइट उसी के अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती और इसलिए जो हमारा डायमंड है वो चमकता रहता है. तो ये तो हो गया क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल ये डेंसर मीडियम का एंगल है जिसके लिए रेयर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो 90 हो. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन we know that at critical angle the angle of refraction is 90 degree. That is the refracted ray passes grazing this interface of the two medium. Suppose this angle is greater than the critical angle. If the angle of incidence is greater than the critical angle, then the ray does not go in the second medium. It's returned back in the denser medium. It comes back in the denser medium. This is called total internal reflection. So when in the denser medium the angle of incidence is greater than critical angle, then the total light rays return back in the same medium, that is called total internal reflection. उसी माध्यम में वापस आ जाती है जिसके कारण दूसरे माध्यम में किरण नहीं जा पाती. इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में when the rays from in the denser medium is such incidence in such a way that the total rays do not go in the second medium, they return back in the denser medium. This is called total internal reflection. इसके बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. एक तो डायमंड का एग्जाम्पल ही है. इसी तरह से अगर मान लीजिए आप किसी बर्तन में पानी भरा हुआ हो और वहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब डाल दें, तो यहाँ इसके अंदर तो एयर है
और यहाँ डेंसर मीडियम, यहाँ रेयर मीडियम। जब इसके ऊपर ये पड़ेगी रेस तो उस पार नहीं जाएगी, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इसलिए ये बहुत तेज चमकती है, लगता है कि इसके अंदर कोई चमकदार चीज़ है। इसी तरह से और भी बहुत से उदाहरण हैं इसके। एक तो मिरर्स का बहुत ही उदाहरण है अच्छा सा, कि रेगिस्तानों में गर्मी के दिनों में दूर पर कोई पेड़ है, झाड़ी है, तो उल्टा दिखता है, वहाँ पर लगता है वहाँ पर कोई पानी भरा हुआ है और उसकी जो परछाई है उस पेड़ की, पेड़ ऊपर दिख रहा है लेकिन उसकी परछाई नीचे हमको दिखती, तो लगता है वहाँ पानी भरा हुआ है। दिस इज नोन मिरेज, दिस इज मिरेज। तो एक तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हमारे पास डायमंड है ही है। डायमंड के अंदर लाइट प्रवेश करती है तो फिर कई बार टोटल रिफ्लेक्शन करती रहती है और तब बड़ी मुश्किल से निकल पाती है, इसलिए बराबर वो चमक देती रहती है। और मिरज में क्या है कि जो रेगिस्तान होते हैं तो गर्मी के दिनों में नीचे की जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है, दैट इज़ वेरी हॉट एंड देयरफॉर दैट इज़ रेयर। और मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है कोई, और अगर ये पेड़ है तो इसकी जो परछाई होगी, जब यहाँ से लाइट चलेगी तो चूँकि इट इज डेंसर मीडियम, दिस इज डेंसर एंड दिस इज रेयरर, और इसलिए डेंसर से रेयरर में जाएगी। एक ऐसी लेयर आएगी जहाँ से ये मुड़ जाएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा एंड दैट विल कम टू आवर आइज। हमको इसकी परछाई यहाँ नीचे दिखाई पड़ेगी, तो हमको लगता है कि इस पेड़ के नीचे पानी भरा हुआ है, उसकी परछाई दिख रही, जबकि वहाँ पर पानी नहीं है रेगिस्तान में। दिस इज ए इल्यूजन, मालूम पड़ता है, दैट इज़ नॉट ट्रू। तो इस तरह से, इसी तरह जो ठंडे प्रदेश हैं तो समुद्र में उल्टी जहाज आती हुई दिखाई पड़ती है, उसका भी यही कारण है, क्योंकि वहाँ पर नीचे नहीं बल्कि नीचे कहीं सा ठंडा रहता है, ऊपर कहीं सा जो होता है वो रेयर होता है, तो जहाज़ का जो लाइट है वो ऊपर से टर्न होकर के आँख पर हमारी जाती है। इसी तरह से जो हमारे प्रिज्म है, राइट एंगल प्रिज्म, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। सपोज ये प्रिज्म है तो ये जब इस प्रिज्म पर पड़ेगी ये लाइट तो इस पर 45 पर पड़ती है और फिर ये इतनी एंगल बनाती हुई ये चली जाती है, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो ये राइट एंगल प्रिज्म में भी इसी कारण से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण से ही जो रेज होती हैं वो वापस उसी दिशा में वापस चली जाती है। ये बहुत सारे उदाहरण हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हैं। अब एक उदाहरण और भी है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर हम जानते हैं कि आजकल जो हमारी इंफॉर्मेशंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, लाइट को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये काम में ऑप्टिकल फाइबर्स आते हैं। दे बिहेव लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्यूब्स की तरह ये व्यवहार करते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर बहुत पतले पतले होते हैं, स्टैंड बहुत पतले पतले, उनकी इस प्रकार की रचना होती है कि ये इस तरह के हुए। अब इनकी ये जो होते हैं अंदर का भाग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहता है और इसके बाहर की जो क्लाइडिंग होती है इसके ऊपर की, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है। तो दिस इज क्लैडिंग, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 के करीब है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के करीब है। तो जब इसके लाइट जाती है तो इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और ये इसी के अंदर ये चलती है, बाहर नहीं निकल पाती। इसको कितना भी हम मोड़ दें, इस ऑप्टिकल फाइबर को मोड़ दें, किधर भी घुमा दें, ऐंठ दें, कुछ भी करें, लेकिन इससे इसके प्रोपोगेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ट्रांसमिट होती चली जाती है।
इसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर ही काम करता है। रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सर्फेसेस, प्लेन सर्फेसेस पर इसके पहले हम लोगों ने देखा है। ये है रिफ्रैक्शन ऑन स्फेरिकल सर्फेसेस। स्फेरिकल सर्फेसेस का मतलब कि जिसका जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी न किसी स्फीयर का कोई ना कोई पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लिया कोई हमने एक बेलन इस तरह का ले लिया और इस बेलन का इतना हिस्सा इस तरह से काट दिया गया, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, उस सेंटर को मान करके इसको स्फीयर बनाया गया। तो ये एक तरह का स्फीयर का पार्ट होगा, ये स्फेरिकल पार्ट हो जाएगा। और ये जो सरफेस है हमारा स्फेरिकल सरफेस है, गोला का एक हिस्सा है। अगर इसको पूरा गोला बनाते तो ये पूरा गोला इस तरह से ये बन जाता, इस तरह का गोला बनता। इसका जो केंद्र है वो इस सरफेस का वक्रता केंद्र, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व बना है ये उसका सेंटर है। एंड दिस मिड पॉइंट जो काटेगा किसी स्फीयर का पार्ट, तो वो इस तरह का होगा, यानी वो कटेगा तो वो इस तरह का होगा, इस तरह का होगा कट करके ऐसे। तो उसका ये सर्कुलर भाग होगा, अंदर का कटा हुआ हिस्सा सर्कुलर होगा। तो इसका ये जो केंद्र होगा दैट इज कॉल्ड पोल ऑफ दिस spherical surface. This is pole, this is center of curvature, and the distance between the pole and center of curvature is radius of curvature. All the distances are measured from here, pole. अब इस तरफ के distances, because the object is taken on this side, there are two medium, first medium, second medium. This is the first medium, this is the second medium. Suppose the absolute refractive index of this medium is mu1 and that of this medium is mu2. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और निर्वात, इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, दिस इज mu1। और इसीलिए इसको लिखा हमने कि ये एब्सोल्यूट, ये इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इज अ पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने इस जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया एज ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट, द रे कम्स फ्रॉम हियर, इट इज इंसिडेंट ऑन दिस spherical surface here. Because this is denser than this, therefore this bends toward the normal. This is center of curvature, this is normal. नॉर्मल को बेंड हो गई और दूसरी रे यहाँ से चली विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर। दीज टू रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए इनको पीछे अगर हम बढ़ाते हैं तो ऑन प्रोसीडिंग टुवार्ड्स बैक साइड दे इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट एंड दिस इज द इमेज, बट दिस इज इमेजिनरी इमेज बिकॉज द रेज आर नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट ईच अदर. This is imaginary image. अभी this is a convex surface. This is imaginary image. This is normal and this is incident ray and therefore this is angle of incidence. अभी रिफ्रैक्टेड रे है और इसीलिए ये जो है हमारा ये this is angle of refraction R. अब यहां पर for refraction the object O, the ray comes and just strikes at this point A and the image is formed at I. This is the first medium, this is the second medium. Now to find out the
formula, let us assume that this angle is alpha, this is beta, and this is delta. Alpha, beta, and gamma. In the books, gamma is written, but because R and gamma we write both in the same way, इसलिए we may confuse gamma with R. Therefore, in place of gamma, we write here delta. The distance of the object is u, because the direction of the ray is this. Opposite to the ray, the distances are taken negative, and the direction of the ray is taken positive, and therefore the distance in the direction is negative and the distances in the direction is positive. The u is negative and the image I, the distance is v, this is negative. Now this is in this direction, therefore radius of curvature is positive. Draw a perpendicular on this principal axis AM. This is perpendicular. Now from here we see that in triangle AOC, in triangle AOC, ये AOC में अगर हम देखें AOC तो I is exterior angle and this is equal to the opposite interior angles beta plus delta. Therefore, I is equal to beta plus delta. Similarly, in AIC, इसमें R is the exterior angle and this is equal to alpha plus delta. So, exterior angle R is equal to alpha plus delta. Now, we know that the refractive index of second with respect to first, that is 1 mu 2, is equal to mu 2 upon mu 1. That is absolute refractive index of the second medium to absolute refractive index of the first medium, mu 2 upon mu 1 is equal to sin I upon sin R. But I and R are small angles. For small angles, sin I is equal to sin I upon sin R is equal to I upon R, and therefore mu 2 upon mu 1 is equal to I upon R. I is equal to beta plus delta, R is equal to alpha plus delta, multiply, therefore mu 1 beta plus delta, mu 2 alpha plus delta. This alpha, beta and delta, because this aperture is small, the spherical जो हमारा surface है इसका aperture छोटा है और therefore these angles are taken to be small, and for small angles the angles are equal to their tangent are equal to their sine. So because we require tan and therefore in place of beta and delta we write tan beta, tan delta. So beta is equal to tan beta, delta is equal to tan delta, and therefore alpha is equal to tan alpha and tan delta. Now tan beta is equal to AM upon OP, AM upon OM. Similarly, tan delta is equal to AM upon MCRCM. On the other side, tan alpha is equal to AM upon IM, AM upon IM, and delta is equal to AM upon CM. Mu 1 here, AM is every here there. As aperture is small, therefore this distance is very small distance, यानी AP and AM are this is also normal to this principal axis because this is small. So ये PM distance is negligible. Therefore this distance, that is OM is equal to OP. तो OM is equal to OP लगभग बराबर है, nearly.
तो OP OM is equal to OP and that is equal to minus U. We have written here with symbol. CM is equal to CP. CM is equal to CP, that is equal to R. And IM is equal to IP is equal to minus V. Putting these values here, AM everywhere cancels away. mu1 upon minus U, mu1 upon R, mu2 upon minus B प्लस mu2 upon R. अब U और B को एक तरफ कर लिया तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस mu2 upon B माइनस mu1 upon U इक्वल टू mu2 माइनस mu1 upon R. अब this is the formula. This is true for convex surface. This is true for concave surface. This is true for imaginary image. This is true for real image. यहाँ तो रियल इमेज बनती नहीं, यहाँ तो वर्चुअल ही बनेगी. अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, चाहे इस तरह हो और इसमें रियल इमेज बनाएं, तो रियल इमेज होगी तो आई की वैल्यू डेल्टा प्लस बीटा आ जाएगी, डेल्टा प्लस बीटा आ जाएगी, और आर की वैल्यू डेल्टा माइनस आर की वैल्यू डेल्टा माइनस अल्फा आ जाएगी. लेकिन जब इसको हम विथ सिंबल्स रखेंगे वैल्यू, तो यही फार्मूला हमको प्राप्त होगा. एंड इन हियर आल्सो इन दिस केस जो आई है वो डेल्टा माइनस बीटा आ जाएगा. आई इज इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा एंड आर इज इक्वल टू डेल्टा माइनस अल्फा. और ये इसकी जो वैल्यूज़ रखेंगे हम यहाँ पर, तो फिर वही इस फार्मूला हमको प्राप्त होगा. इस प्रकार चाहे वो कन्वेक्स हो, उसमें रियल इमेज बने या वर्चुअल बने, चाहे वो कनकेव हो जिसमें हमेशा वर्चुअली बनती, चाहे वो कन्वेक्स हो और वर्चुअल बने, लेकिन इन एवरी केस we get mu2, that is the second refractive index of the second medium upon the distance of the image and the first medium distance of the object is equal to the difference of these two refractive indices upon the radius of curvature. हमेशा जो v होगा उस सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नीचे ही होगा. सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होगा रे जहाँ को जाती है, और जहाँ से आती है दैट इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि सामान्यतः कभी कभी वी यूज सिंपल फार्मूला फॉर वेयर mu2 और mu1 इज सपोज 1 एयर में है. तो अगर इस तरह का है तो इफ mu2 upon mu1 is equal to mu, suppose refractive index of the medium, स्फेरिकल सरफेस, तो क्या होगा कि हमारा फार्मूला हो जाएगा म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपान आर. देन इट विल बिकम लाइक दिस. दिस इज द रिफ्रैक्टिव, दिस इज द फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन on the surface, whether convex or concave surface, when that is in the air. Are you so say that we know the refractive index of the second medium with respect to first medium.
lens. Lens is a medium surrounded by two spherical surfaces. Whether both the surfaces are convex, or one is convex, other is concave, or one is convex or concave, or other is plane. Suppose this is a lens. वो कोई भी इसके जो सरफेसेस हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन फार्मूला सबके लिए एक ही आएगा. उनकी वैल्यू रख देने के बाद जो कटना होगा कट जाएगा. इसको वी हैव टू कैलकुलेट द फार्मूला फॉर द रिफ्रैक्शन इन द लेंस on the basis of the refraction on the spherical surfaces. There are two spherical surfaces in this lens. Suppose one is here, this is convex, one is here, this is concave. The radius of curvature for the first surface is C1 and radius of curvature for the center of curvature for the first surface is C1 and the radius of curvature for the R1, and the center of curvature for the second surface is C2 and the radius of curvature is R2. This is one medium, then the lens, and on the other side suppose a medium M3. That may be M1. यहाँ भी दोनों जगह एक मीडियम भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकती है. मान लीजिए यहाँ पर हवा है और यहाँ लेंस है, उसकी इस तरफ मान लिया पानी भरा हुआ है, तो अलग अलग भी हो सकता है. हम मान लेते हैं कि ये अलग अलग है. तो let us consider the refraction on the first surface. O is object. The ray comes on this surface. After refraction, this bends towards the normal. This is normal. This is C1. Suppose this is A1 and this is A2. So A1, C1 A1 is the normal, and therefore this OA1 bends towards the normal, and the other ray goes through this C2. These two rays do not intersect each other. Therefore, when we proceed backward direction, I dash image is formed for this surface, first surface. अगर ये सेकंड सरफेस ना होता तो ये फर्स्ट सरफेस के कारण ड्यू टू दिस कन्वेक्स सरफेस आई डैश इमेज हमको मिलती, जैसा इसके पहले हम लोगों ने इनिशियली निकाला भी हुआ है. तो दिस इज द इमेज फॉर दिस फर्स्ट सरफेस. दिस अब इसका ये इमेज हो गई. नाउ द रे कम्स हियर एंड strikes here at this point. C2 A2 is normal because this is suppose rarer than this, and therefore this bends away from the normal and comes to strike here, and the final image I is formed here. That due to these two surfaces the image is I. Due to one is I dash, and this I dash behaves like a imaginary object for this surface, and this surface is इसका जो इमेज है वो यहाँ बना देता है. तो इस बार दो बार इमेज बनती है. Once the image of O is formed by this surface at I dash, and then I dash because this ray is coming from I dash not from O. यहाँ से मुड़ गया तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो this ray is coming from I dash. Therefore the ray coming to this surface, curved surface, this surface is coming from I dash. Therefore I dash is object for this, though this is imaginary but this is object. तो for this second surface, तो for first surface हमने फार्मूला लगा दिया. for first surface के लिए है कि refractive index of the second medium upon distance of the image, refractive index of the first surface upon distance of the object, दोनों का डिफरेंस upon their radius of curvature. तो refractive index of the second surface mu2 and the distance of the image that is b dash
and refractive index for the first surface and the distance of the object. अब सेकंड के लिए लगाइए। सेकंड के लिए क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड सरफेस। इस सरफेस के लिए इस सेकंड सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, μ2 द फर्स्ट सरफेस, μ3 द सेकंड सरफेस, बिकॉज रेज कमिंग फ्रॉम μ2 टू μ3। तो μ3 अपॉन डिस्टेंस ऑफ द इमेज, μ2 distance of the object, but object is I dash for this surface, therefore b dash, the distance is b dash. तो μ3 upon b minus μ2 upon b dash is equal to μ3 minus μ2 upon r2. This is the refraction for this surface. अब हमको निकालना है फॉर द लेंस। इसके और इसके रिफ्रैक्शन हमने अलग अलग लिए, अगर दोनों कंबाइन करते हैं तो इस पूरे लेंस के लिए हमको फार्मूला मालूम हो जाएगा। हमने इनको ऐड कर दिया, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो माइनस μ2 अपॉन बी डैश और μ2 अपॉन बी डैश, यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। μ3 अपॉन बी माइनस μ1 अपॉन यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 अब प्लस μ3 माइनस μ2 अपॉन r2। दिस इज ए जनरल फार्मूला, दिस इज जनरल। कोई भी अगर दोनों तरफ एक ही मीडियम ना हो तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर एक ही मीडियम ना हो तो। अब मान लिया इफ ऑन बोथ साइड ऑफ द लेंस इज सेम मीडियम, दैट इज μ3 एंड μ1 इज सेम, पुट इन प्लेस ऑफ μ3 μ1, तो μ1 यहाँ रखा तो μ1 इज कॉमन, देयरफॉर 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इज हियर, μ3 जगह μ1 रखा तो हो गया μ1 माइनस μ2 और माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा r2 के पहले, तो ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1, वो कॉमन दोनों जगह हो जाएगा, बाहर निकाल लिया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन u, μ1 से भाग दे दिया, μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब यहाँ μ2 अपॉन μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। तो हमने मान लिया कि मीडियम हमारा μ1 है और μ2 इज द लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको 1 μ2 कह सकते हैं, इसको म्यू हमने मान लिया, तो 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हमको निकालना है लेंस मेकर्स फार्मूला भी ज्ञात करना रहता है। जनरली वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द लेंस मेकर्स फार्मूला। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जो हमने ऑब्जेक्ट ओ लिया है ये ऑब्जेक्ट हमारा दैट इज एट इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी पर होगा तो जो हमारी ये इमेज बन रही है ये इसके फोकस पर बनेगी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज एट फोकस। तो इसलिए व्हेन यू इज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी दैट इज यू इक्वल टू इन्फिनिटी, तो v इक्वल टू एफ, पुटिंग हियर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये छूट गया, तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला, दिस इज लेंस मेकर्स फार्मूला। पावर ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस पे जब किरणें पड़ती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और इस तरह से कोई भी लेंस प्रिंसिपल एक्सिस से 1 मीटर दूर जाने वाली किरणों को जितना बेंड कर देता है दैट इज पावर ऑफ दैट लेंस। हमें कह सकते हैं कि दिस इज द एबिलिटी टू बेंड द रेज फॉलिंग ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद जितना इसको बेंड कर देता है उस एबिलिटी को ही हम पावर कहते हैं। पावर को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज 1 अपॉन एफ व्हेन द focal length is measured in meter. If it is in centimeter then it is 100 by f in centimeters. इसका जो यूनिट है वो आर्बिट्री यूनिट ली गई है डायोप्टर, वैसे आप देखें तो ये आता है 1 अपॉन एफ दैट इज मीटर इनवर्स, लेकिन इसके लिए आर्बिट्री माटर डायोप्टर लिया गया है। मान लीजिए हमारे पास एक लेंस नहीं है, एक से ज़्यादा लेंसेज हैं, तो उनकी जो इक्विवेलेंट फोकस दूरी होगी वो उनकी कितनी होगी। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए प्रत्येक लेंस का हम अलग अलग
रिफ्रैक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो लेंस है, यद्यपि हमने यहाँ पर दोनों लेंसेस कन्वेक्स लिए हैं, वो कोई कन्वेक्स हो या कनकेव हो या प्लेनो कन्वेक्स हो, इस फर्क नहीं पड़ता। अगर वो कन्वेक्स होगा तो फिर उस फोकस दूरी पॉजिटिव होगी, कनकेव होगा तो फोकस दूरी निगेटिव होगी। तो इसलिए ये अंतर नहीं आता कि हमने यहाँ कन्वेक्स लिया या कनकेव लिया, कोई भी किसी तरह का भी लेंस ले सकते हैं। और यहाँ दो हमने लिए, दो भी ले सकते हैं, दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो द लेंसेज आर इन कंटैक्ट, लेंस आपस में मिले हुए एक दूसरे के कंटैक्ट में है। अब देखिए ये जो पहला वाला लेंस है, इसके पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया जो u दूरी पर है, तो ये क्या करेगा, ये पहला वाला लेंस, इफ़ सपोज देयर इज़ नो सेकंड लेंस L2, यहाँ लेंस नहीं है, तो ये इसको ला करके आई डैश पर अपनी ये इमेज बना देगा। तो इफ़ L2 इज़ नॉट प्रेजेंट दियर, तो जो रिफ्रैक्शन होगा, जो इमेज फॉर्म होगी, वो पहले लेंस के द्वारा होगी। और उसके लिए हम फार्मूला जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f। उस फार्मूले को हम फर्स्ट लेंस के लिए लगाते हैं। फॉर द फर्स्ट लेंस L1, v डैश इज द इमेज फॉर्म बाई L1, तो 1/v डैश यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, 1/u = 1/f1, 1 इज इट्स फोकस दूरी पहले की। अगर इसके बगल में कंटैक्ट में लाकर हमने दूसरा लेंस F2 फोकस दूरी का रख दिया, तो ये जो किरण जा रही थी यहाँ पर, अब ये किरण यहाँ आगे नहीं जाएगी, इस पर उसका रिफ्रैक्शन होगा, बेंड होकर के पहले ही इसका इमेज बना देगी। इसका मतलब ये जो इमेज बन रही है, ये इसके कारण बन रही है। और अगर ये लेंस नहीं होता तो ये इमेज यहाँ बनती। तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि ये जो इमेज इसने बनाई, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और ये लेंस क्या करता है कि इसको अपना ऑब्जेक्ट समझ कर इसका इमेज यहाँ बना रहा है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस एंड दिस इज इमेज फॉर द सेकंड लेंस। क्योंकि अगर ये नहीं होता लेंस, तो ये इमेज यहाँ बनती। इसका मतलब ये है कि अगर लेंस का रख दिया तो वही इमेज जो यहाँ बननी चाहिए थी इसके द्वारा, उसको इसने वस्तु समझकर और उसको बेंड करके इसका इमेज यहाँ बना दिया। क्योंकि हम अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं, अगर एक साथ देखते तो ये चीज़ हमको नहीं दिखाई देती, केवल यहाँ से किरण बेंड होकर यहाँ आ जाती। क्योंकि इनकी अलग अलग क्रियाओं को हम देख रहे हैं। देयरफॉर फॉर द फर्स्ट लेंस 1/v डैश upon 1/u = 1/f1, and for refraction by the second lens L2 के लिए 1/v, that is distance of the image, final image, and distance of the object. For this second lens, this is the distance of the object minus 1/v dash, that is equal to 1/f2। अब अगर हम ऐड कर दें तो ये दोनों जो कंटैक्ट में कम लेंस हैं, ये दोनों के लिए हमको फार्मूला मालूम हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो v डैश कॉमन है, कट गया, जगह पॉजिटिव एक जगह निगेटिव है। तो 1/v - 1/u = 1/f1 + 1/f2। अगर दो लेंस हैं, 3 होंगे तो 1/f3 भी आ जाएगा, 4 होंगे तो 1/f4 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जो अगर इनको एक साथ देखें, एक ही लेंस मानकर देखें, तो u इसके लिए ऑब्जेक्ट है और v इसके लिए इमेज है। तो अगर इसकी इक्विवेलेंट फोकस दूरी f हो तो 1/v - 1/u = 1/f, यानी दोनों की इक्विवेलेंट फोकस दूरी। तो 1/v - 1/u = 1/f। इफ in place of these two lenses behave like one lens of focal length f। अब यहाँ देखिए ये 4 है, ये 3, दोनों इक्वेशंस को अगर आप इनको कंपेयर करें तो 1/v - 1/u = 1/f, 1/v - 1/u = 1/f1 + f2, बस बराबर कर दिया। इसलिए 1/f = 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 एंड सो ऑन। अगर इसको पावर में लिखेंगे तो इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ इज पावर, p = p1 + p2 + p3 p4 लाइक दिस। ये तो तब हुआ जब लेंसेज आर इन कंटैक्ट। सपोज द लेंसेज आर नॉट इन कंटैक्ट, जो लेंसेज हैं वो कंटैक्ट में नहीं हैं, इन लेंसेज के बीच डिस्टेंस है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज t।
इनके बीच की डी डिस्टेंस है, इसकी फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2। तो उस स्थिति में इसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी 1/f = 1/f1 + f/f2 माइनस 1/f1 f2। This is the formula for the lens when they are separated by a distance d. That's all. For convex lens, relation between u, v, f. U, the distance of the object from the optical center of the lens. V, the distance of the image from the optical center of the lens. F is the distance of the focus from the optical center. Now here this is a convex lens. In convex lens, the image is real, and in one condition it is virtual. When the object is between focus and optical center, then the image is on the same side and imaginary. Whether the image is real or virtual, but the relation between u, v, f is same, and the relation is same whether it is for convex lens or for concave lens. In the case of concave lens, in every case the image is virtual, erect and small, but here the image may be enlarged or small, virtual or real, इन्वर्टेड और एरेक्ट। लेकिन इन एवरी केस कुछ कैसा भी इसमें इमेज बनेगी, लेकिन जो भी रिलेशन आएगा वो इनके बीच का यही आएगा 1/v - 1/u = 1/f। तो मान लीजिए दिस इज ए बी इज ऑब्जेक्ट, वन रे comes from here v, along this principal axis, and the one ray from this A is parallel to the principal axis, is just falls at this point M, and after refraction it passes through this focus because this is parallel. Another ray from this A is straight passing through the optical center. Because this is passing through the optical center, therefore this passes direct, and they intersect at point A dash. Thus draw the perpendicular on this principal axis at B dash. A dash B dash is the image of AB. The distance of the object from the optical center is u. Because ray is propagating in this direction, the distance measured in opposite direction taken negative. Distance measured in this direction is taken as positive. This is positive, but this is negative. इसमें जो हम सिस्टम प्रयोग करते हैं लेंसेज में और रिलेशंस निकालने में ज़्यादातर सिमिलर ट्रेंगल्स लेते हैं. If we consider two triangles here, A B O and A dash B dash O. Triangle A B O and triangle A dash B dash O are similar. In similar triangles, the ratio of the arms sides are equal. Therefore, AB upon A dash B dash is equal to BO upon B dash O dash. Here AB upon A dash B dash is equal to BO upon B dash O. BO is equal to U, is negative, therefore minus U, and this B dash O is equal to V. So this is minus U upon V. This is first equation. Now taken the other triangle MOF and A dash B dash F. These are two triangles. तो पहले तो हमने इन ट्रायंगल्स को ले लिए बड़े ट्रायंगल्स, ये जो यहाँ थे यह ट्रायंगल और ये ट्रायंगल थे बड़े वाले, और हमने अब ये ले लिए ये ट्रायंगल
और यह ट्रायंगल. These are similar triangles. Triangle MOF, and A', B', F are similar triangles. And therefore, MO upon A', B', MO upon A', B' is equal to OF upon B', F, OF upon B', F. Here, MO is equal to AB. These two are parallel, and therefore AB is equal to MO. तो MO is equal to AB, इन प्लेस ऑफ MO हमने AB रख दिया, तो हो गया AB upon A', B'. OF is equal to F, and B'F is equal to V minus F. This is second. Now, AB upon A', B' is in second, AB upon A', B' is in first. Comparing these two equations, AB upon AB' B' की वैल्यू ये है, AB upon A', B' की वैल्यू ये है. दोनों वैल्यूज़ को हमने इक्वेट कर दिया. फ्रॉम 1 and 2 वी गेट माइनस U upon B इक्वल टू F upon V माइनस F. इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया आपका FB इक्वल टू माइनस UV और माइनस माइनस प्लस FB डिवाइडिंग बाई UBF. इसको जब हमने UBF से डिवाइड किया तो F और B कट गया 1 upon U. यहाँ पर UB कट गया 1 upon F. यहाँ FU कट गया 1 upon B. V और U को एक तरफ कर लिया तो हो गया 1 upon V minus 1 upon U इक्वल टू 1 upon F. This is a relation between U, V and F for convex lens. We can calculate it for concave lens too. यही रिलेशन UV-F के बीच का कनकेव लेंस के लिए. कनकेव लेंस में जो इमेज है दैट इज इरेक्ट, वेरी स्मॉल ऑन द सेम साइड एंड वर्चुअल. तो ये वन रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन it passes in this way coming from the focus, other passes to the optical center, and this point of intersection is represents the image. A dash B dash is the image. Here are also 4 triangles which we consider. These triangles are, first we consider this triangle and this triangle. A, B, O and A dash B dash O. A, B, O and A dash B dash O are similar. बिल्कुल जिस तरह उसमें थे सेम वही. And therefore A B upon A dash B dash is equal to B O upon B dash O. B O is equal to minus U. B dash O is equal to V. This is also negative. This is on the same side. Therefore U upon V is equal to U upon V. This is the first equation. Now consider these two triangles. One triangle is this, another is this. That is MOF and A dash B dash F. MOF and triangle A dash B dash F are similar. Therefore, MO upon A dash B dash is equal to OF upon B dash F. Here, MO is equal to AB. AB and MO are equal. Replace this MO by AB. Therefore, AB upon A dash B dash is equal to OF. OF is equal to minus F. And B dash F is equal to difference of this F and V. तो F में से B को घटा दिया और फिर चूंकि दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी निगेटिव, उसके पहले निगेटिव लगा दिया. Therefore, A B upon A dash B dash is equal to F upon F minus V. इसका निगेटिव खत्म हो गया. Now multiply them. Dividing by UVF we get 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. This is the relation for
concave lens. The relation is similar, the same relation. चाहे इमेजरी इमेज बनती हो, चाहे रियल बनती हो, उस साइड में बने या इस साइड में बने, इरेक्ट हो या इन्वर्टेड हो, लेकिन जो हमारा जो फार्मूला आता है वो लेंस के लिए, दोनों के लिए एक ही प्राप्त होता है. Now linear magnification, it is ratio of height of image to the height of object. किसी भी लेंस के द्वारा, मान लीजिए हमारी वस्तु है और इसका ये इमेज बनी, तो दिस इज हाइट ऑफ द इमेज एंड दिस इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका जो रेशियो है दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन. Therefore, magnification equal to H2 upon H1. This is the ratio of V to U. For lens, we know that 1 upon V, 1 upon U is equal to 1 upon F. We multiply by V, 1 minus V upon U is equal to V upon F. इसको उधर ले जाएं, इसको उधर ले आइए, तो V upon U is equal to 1 minus V upon F minus V upon F. Therefore, magnification V upon U is equal to F minus V upon F. ये F और V के फॉर्म में है, इसको F और U के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F multiply by U upon V minus 1 is equal to U upon F. U को उधर, इसको 1 को उधर ले जाएं तो V U upon V is equal to 1 प्लस V U upon F. F से गुणा किया तो F प्लस U upon F. इसको इन्वर्ट कर दिया तो V upon U is equal to F upon F plus U. We know that this is magnification. This is equal to F upon F plus U. These are three forms of magnifications, that is H2 upon H1, V upon U. This is in the form of F and V, this is in the form of F and U. रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. प्रिज्म इस तरह की एक मीडियम है सराउंडेड बाय प्लेन सरफेसेस. दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज एंगल ऑफ द प्रिज्म. These two surfaces are called refracting surfaces. Now, incident rays, incident at this point P, this is angle of incident. In this medium, it bends toward the normal. और ये आपके रिफ्लेक्टेड रे आती, फिर उसके बाद बेंड हो जाती है और ये बाहर, दिस इज द इमर्जेंट रे. तो ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है. This is angle of emergence, angle of incident and angle of emergence. ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ इस मीडियम में है. ये एंगल ऑफ डेविएशन है. रे डेविएट हो जाती है फ्रॉम इट्स पाथ. इट वाज गोइंग इन दिस डायरेक्शन बट एज इट इंटर्स दिस मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल और ये इस तरफ बेंड हो गई. इतना इसका डेविएशन हो गया. एंगल ऑफ डेविएशन एट दिस पॉइंट पी इज डेल्टा 1. जब यहाँ पहुँचती है रे तो इसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन तब इधर को बेंड हो जाती है, इधर को, इन दिस वे. तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन एट दिस पॉइंट, दैट इज क्यू. तो देयर आर टू एंगल्स, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 एट पॉइंट पी एंड क्यू, एंड द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, रे को इधर जाना चाहिए था और वो रे अंत में इधर को गई. Total angle of deviation delta is equal to delta 1 plus delta 2. Everything is written here. The angle of deviation delta 1, delta 2 are the angle of deviations at P and Q. A is the angle of prism. If we draw the curve between angle of incidence and the angle of deviation, this is known as ID curve. So we see that at a particular angle of deviation, angle of emergence and angle of incidence both are equal. एक ऐसा एंगल आता है which is minimum angle.
दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो कंडीशंस हैं कि एट मिनिमम डेविएशन I1 I2 दोनों बराबर हो जाते हैं और इसे R1 और R2 भी दोनों बराबर हो जाते हैं एट, लेकिन यहीं पर और कहीं नहीं, एट मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पर फ्रॉम फिगर डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल डेल्टा 1 डेल्टा 2, एंड डेल्टा 1 इज इक्वल टू दिस टोटल एंगल इज R1 plus delta 1 which is equal to I1. This is vertical opposite angles, and therefore I1 minus R1 is equal to delta 1 और I2 minus R2 is equal to delta 2, this angle. तो delta is equal to delta 1 plus delta 2, I1 minus R1 is delta 1, I2 minus R2 is equal to delta 2, I1 I2 एक जगह कर लिया, R1 R2 एक तरह कर लिया। इसी प्रकार से इन दिस ट्रायंगल PQR, in triangle PQR, R1 plus R2 plus R, this is equal to 180. R1 plus R2 plus R is equal to 180 because the interior angles of a triangle is equal to 180. These are the interior angles of a triangle PQR. इस PQR triangle angles of a triangle PQR इसके एंगल है, और A plus R ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है इसके ये अपोजिट एंगल्स है। दीज आर 90, दिस इज 90 एंड देयरफॉर दिस एंड दिस इज इक्वल टू 90 90 180। तो A प्लस R इज इक्वल टू 180। तो A प्लस R इज इक्वल टू 180, R1 प्लस R2 प्लस R इज इक्वल टू 180, R इज कॉमन देयर, देयरफॉर A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नाउ एट ए पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज एट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, at angle of minimum deviation I1 is equal to I2, जब दोनों बराबर हैं तो उनको हमने I मान लिया। इसी प्रकार R1 R2 तो इसको हमने R मान लिया। अब हमने इसमें रखा तो एंगल मिनिमम डेविएशन एंगल हो जाएगा I1 I2 बराबर 2I, R1 R2 इज इक्वल टू 2R। यहाँ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2R, A इज इक्वल टू 2R, तो यहाँ पर 2R की जगह हमने A रख दिया। देयरफॉर 2I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M अपॉन 2। सिमिलरली फ्रॉम हियर 2R इज इक्वल टू A, देयरफॉर R इज इक्वल टू A बाई 2। पुटिंग द वैल्यू इन दिस इज स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2, इसकी वैल्यू रखा, साइन A अपॉन 2 इसकी वैल्यू रखा। This is the refractive index of the prism. Refractive index of the prism. अब ये जो refractive index of the prism आया, ये इस एक ऐसा प्रिज्म है जिसमें एंगल्स आर नॉट वेरी स्मॉल। इफ द एंगल्स आर स्मॉल तो इसको भी इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ये जो साइन है देन साइन कैन बी लेफ्ट, और यहाँ पर A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 और साइन A बाई 2 रह जाएगा। तो इसको हम अगर थोड़ा चेंज कर दें तो इसका एक रिलेशन हमको इस प्रकार भी प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर small angles mu is equal to I अपॉन R की जगह हो जाएगा A प्लस डेल्टा M अपॉन A बाई 2 अपॉन A बाई 2। बाई टू कट जाएगा, यह हो गया A प्लस डेल्टा M अपॉन A। देयरफॉर म्यू A दिस इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा M, देयरफॉर डेल्टा M इज इक्वल टू म्यू A
माइनस ए डेल्टा एम इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स as well as the angle of the prism, because for a particular prism the angle is fixed and therefore deviation depends upon mu। जो इतने भी रंग की किरणें होती हैं अलग अलग रंग की, तो वो अलग अलग हो जाती हैं। सफ़ेद रंग को अगर डालें हम प्रिज्म पे तो वो अपने जो रिफ्लेक्टिव कंपोनेंट्स में अलग हो जाती हैं, बिकॉज सब के लिए म्यू अलग अलग रहता है। और म्यू डिपेंड्स होता है एक्चुअली म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर, दैट इज म्यू इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा स्क्वायर 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर। जिसके लिए लेमडा स्क्वायर ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू कम होगा, यानी लेमडा अगर ज़्यादा है तो म्यू उसके लिए कम होगा। अब लेमडा रेड के लिए ज़्यादा है तो उसके लिए म्यू कम होगा, और वायलेट के लिए लेमडा कम है तो म्यू उसके लिए ज़्यादा होगा। अब जिसका म्यू ज़्यादा होगा तो उसके लिए डेविएशन भी ज़्यादा होगा, और इसीलिए जो हमारे प्रिज्म पर जब किरणें पड़ती हैं तो रेड इसका डेविएशन कम होगा। इसका डेविएशन कम इसलिए होगा क्योंकि इसके लिए म्यू कम है, और जो वायलेट है उसके लिए डेविएशन ज़्यादा होगा। दिस इज रेड, दिस इज वायलेट। और इसलिए ये जो रेड रंग के लिए डेविएशन है ये वैगनी रंग के डेविएशन से कम रहता है, यानी यह डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। इस प्रकार से जितने भी कलर होते हैं सबके लिए अलग अलग रहता है। दिस इज द रीजन व्हाई दे डिवेट एट डिफरेंट एंगल्स, और अलग अलग हो जाते हैं। सारे के सारे रंग सारे इस प्रिज्म के अंदर अलग हो जाते हैं। तो दैट इज ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें पहला है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम छोटी वस्तुओं को बड़े रूप में देखते हैं, मैग्नीफाइड रूप में देखते हैं। छोटी छोटी वस्तुएं बड़े रूप में हमको दिखाई देती हैं। माइक्रोस्कोप की ये इसका रे डायग्राम है, जिसमें जिस वस्तु को देखा जाता है उसके निकट जो लेंस रहता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। इसका मुख्य व्यास भी छोटा रहता है और उसकी फोकस दूरी भी छोटी होती है। छोटी फोकस दूरी, छोटे मुख्य व्यास का जो लेंस है इसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। और जो वस्तु है, चूँकि इसकी पूरा का पूरा इसका प्रकाश इसके अंदर आना चाहिए, इसलिए इसको काफ़ी इसके निकट रखते हैं, और इसलिए इसकी फोकस दूरी और मुख्य व्यास दोनों छोटा रखा जाता है। दूसरा इसका एक लेंस है जो हमारे आँख के निकट रहता है, जिसे हम कहते हैं आई पीस। अब ये आई पीस, ये इसका जो मुख्य व्यास है वो बड़ा है, जिससे कि जो प्रतिबिंब बने इसके द्वारा उसका पूरा का पूरा प्रकाश इसको मिले और स्पष्ट प्रतिबिंब साफ साफ हमें दिखाई पड़े। इसके प्रतिबिंब बनने का ये दिख रहा है ये रे डायग्राम। इसकी एक किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाती, दूसरी पैरेलल है, और ये पैरेलल रे इस फोकस से जाती है, इस बिंदु पर मिलती है। ए डैश बी डैश ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो हमारा वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश, जो इसका रियल है और इन्वर्टेड है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब ये हमारा जो लेंस है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। इसको हम आगे या पीछे करके इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि हम प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना चाहते हैं। कभी प्रतिबिंब को हम थोड़े समय के लिए देखते हैं, बहुत साफ देखना चाहते हैं, उसको इस पर दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनाते हैं। कभी प्रतिबिंब को हम सामान्य वे में काफ़ी देर देखना चाहते हैं, रिलैक्स आँख से देखना चाहते हैं, और रिलैक्स आँख से देखने के लिए प्रतिबिंब को अनंती बनाते हैं, क्योंकि अनंती की वस्तुओं को समानता हम बिना किसी टेंशन के देखते रहते हैं।
तो इसके लिए हम इनको आगे या पीछे करके एडजस्ट कर लेते हैं कि कहाँ पर हमको कोई कैसा प्रतिबिंब देखना है। अब ये इसका प्रयोग करने का तरीका तो ये है कि इसमें क्रॉस रहता है, पहले हम उस क्रॉस को एडजस्ट कर लेते हैं, फोकस कर लेते हैं। फिर ये जो प्रतिबिंब बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जो आई पीस बनाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको उसी क्रॉस पर हम बनाते हैं। और जब उस क्रॉस से पर वो बनने लगता है, उसके बीच पैरेलैक्स नहीं रह जाता, तो हमें मान लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब साफ बन रहा है। इसको आगे या पीछे करने के लिए रैक एंड पिनियन मेथड रहता है, उससे हम इसको आगे या पीछे सरका करके कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होगी। तो पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन के लिए जो इसका अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो है ए डबल डैश बी डबल डैश, और जो हमारी वस्तु है वो है ए बी। तो ये पूरा जो सिस्टम है, इसके द्वारा जो मैग्नीफिकेशन मिल रहा है देखने में, ए डबल डैश बी डबल डैश अपान ए बी, यानी अंतिम प्रतिबिंब बटा ऑब्जेक्ट। अब ये जो बीच में इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है या जो इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, इसकी लंबाई से हम गुणा कर दें और इसी से भाग दे देते हैं। ए डैश बी डैश से हमने मल्टीप्लाई किया, ए डैश बी डैश से डिवाइड कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो दिस इज ए डैश बी डैश अपान ए बी एंड दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है, और इसलिए ये जो रेशियो आएगा दिस इज मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। एंड ए डबल डैश बी डबल डैश इज द इमेज फॉर्म्ड बाई आई पीस and a dash b dash is object for this eyepiece, and therefore a double dash b double dash upon a dash b dash, ये रेशियो आएगा यमी, दैट इज eyepiece मैग्नीफिकेशन ऑफ eyepiece। अब एमओ जो इसका मैग्नीफिकेशन होगा वो कितनी दूर पर प्रतिबिंब बनता है, वी वो इसके इमेज की दूरी अपान इसके ऑब्जेक्ट की दूरी, यानी वी ओ अपान ओ यू ओ। चूँकि ये निगेटिव है, पीछे की तरफ है, रेज की उल्टी दिशा में है, इसलिए निगेटिव रहेगा। तो दिस इज द मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस लेंस। अब नाउ मैग्नीफिकेशन ऑफ दिस लेंस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल इमेज फ्रॉम दिस लेंस and the distance of this object for this a dash b dash from this lens, that is v e upon u e। दोनों एक ही तरफ हैं, दोनों नेगेटिव होंगे इसलिए पॉजिटिव हो जाएंगे, v u e upon u e। चूँकि ये भी इसी तरफ है, ये माइनस यू ई होगा, ये भी इसी तरफ है, माइनस वी हुआ, माइनस वी अपान माइनस यू ई इक्वल टू वी अपान यू ई। ये तो एक जनरल हमको मैग्नीफिकेशन मालूम हुआ। अब फॉर दिस लेंस दैट इज आई पीस, इस आई पीस के लिए अगर देखें तो 1 अपान वी ई, चूँकि वी ई भी इसी तरफ है और प्रतिबिंब वस्तु भी इसी तरफ है, तो 1 अपान माइनस बी माइनस 1 अपान माइनस वी इक्वल टू 1 अपान एफ ई। ई मतलब आई पीस। इस वी ई से हमने इसको गुणा कर दिया, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी हो जाएगा वी ई अपान यू ई इक्वल टू वी ई अपान एफ ई। इसलिए इस 1 को उधर ले गए, इसलिए वी ई अपान यू ई बराबर 1 प्लस वी ई अपान एफ ई। अब यदि हमने इमेज को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाया है, जहाँ पर कि हमको साफ प्रतिबिंब दिखे और ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये डिस्टेंस हमारी d के बराबर हो। इफ दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू d, वी ई इक्वल टू d, तो हमने क्या किया कि वी ई की जगह पर हमने d रख दिया यहाँ, एंड देयरफॉर वी ई अपान यू ई इक्वल टू 1 प्लस d अपान एफ ई। पुटिंग दिस वैल्यू इन 1, therefore magnification is equal to
यू वी ओ अपान माइनस यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई। ये हो गया मैग्नीफिकेशन इस इक्वेशन नंबर 1 से। वी अपान यू ई बराबर 1 प्लस डी अपान एफ ई, इसलिए पुटिंग इन 1 अगर एक में हम रख देंगे तो हमको ये मिलेगा। अब इफ़ द इमेज इज एट इन्फिनिटी, अब अगर हमने इमेज पर को इन्फिनिटी पर बना दिया तो v इक्वल टू यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाएगा। हियर इफ़ v इक्वल टू इन्फिनिटी, हम रिलैक्स आँख से प्रतिबिंब को देखना चाहते हैं, देन 1 अपान इन्फिनिटी v इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस 1 अपान यू ई, यहाँ इन दिस इक्वेशन ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 अपान यू ई इक्वल टू 1 अपान एफ ई। हमने इस v ई से गुणा कर दिया, जब v से गुणा कर दे ये तो 0 हो गया, p से गुणा कर देंगे तो वी ई अपान यू ई बराबर वी ई अपान एफ ई, बी अपान यू ई इक्वल टू वी अपान एफ ई। और चूंकि प्रतिबिंब को हमारी आंख देखती है तो इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी पर ही बनाती, b बराबर d रख दिया, इसलिए ये बराबर हो गया d अपान एफ ई। वी अपान यू ई का मान हमने रख दिया इसी इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमें ये प्राप्त हो गया मैग्नीफिकेशन जबकि इमेज इन्फिनिटी पर बनती। तो ये तो हो गया इसका जो मैग्नीफिकेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर ध्यान से देखें, अगर सामान्यतः अगर ये हमारा ये प्रतिबिंब बन रहा है स्पर्श की न्यूनतम दूरी पर, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये जो लेंस की इसकी ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसके लिए इमेज की दूरी हुई, और ये यहाँ से यहाँ तक दूरी इसके लिए वस्तु की दूरी हुई। इसलिए जो लंबाई होगी इसकी हमारे माइक्रोस्कोप की लेंसों के बीच की दूरी, या कहिए माइक्रोस्कोप की जो लंबाई होगी, दैट इज इक्वल टू वी ओ प्लस यू ई, वी ओ प्लस यू ओ, वी ओ प्लस यू ई। ये उस समय है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य की दूरी अर्थात लीस्ट डिस्टेंस अपान डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है। और अगर ये इन्फिनिटी पर बनता है तो निश्चित रूप से ये डिस्टेंस इसके फोकस दूरी के लगभग बराबर हो जाएगी, और इसलिए उस स्थिति में यल बराबर हो जाएगा, इधर तो वी ओ हो जाएगा लेकिन यहाँ पर यू ई की जगह एफ ई हो जाएगा। तो ये तो सेकंड केस में है, बी वाले केस में है, और ये ए के केस में है। तो दिस इज फॉर माइक्रोस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप मीन्स जिससे हम दूर की वस्तुओं को निकट देखते हैं और स्पष्ट देखते हैं, उसे हम टेलीस्कोप कहते हैं। टेलीस्कोप एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल दो तरह का होता है। टेरेस्ट्रियल तो जिससे ज़मीन की वस्तुएं देखते हैं, उसमें जो भी इमेज बनेगी फाइनल इमेज हमेशा सीधी बनेगी, क्योंकि नीचे अगर किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु को देखेंगे, अगर उसकी इमेज उल्टी बनेगी तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो सकेगी, इसलिए उसको साफ साफ देख सकें, इसे सीधी इमेज बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है कि हम किसी भी आकाशीय पिंडों के बारे में देखते हैं। यहाँ उल्टा सीधा नहीं होता, किसी भी तरह का होगा वो आकृति तो उसको हम साफ साफ देख लेंगे, इसलिए इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। इसलिए इसमें जो इमेज बनती है फाइनल इमेज दैट इज इन्वर्टेड। अब ये किरणें दे आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं दे आर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये इसके फोकस पर आकर के यहाँ इस जगह पर यहाँ इकट्ठी होती हैं और इसकी इमेज ए बी बन जाती है, जो इन्फिनिटी पर वस्तु है उसकी इमेज ए बी। फिर ये ए बी, ये तो बड़ा लेंस है क्योंकि दूर की वस्तु को देखना है, ज़्यादा प्रकाश आना चाहिए, उसकी इंटेंसिटी अधिक होनी चाहिए, लेकिन ये छोटा है इसके कंपैरिजन में, और इसलिए इससे जो भी प्रतिबिंब बनता है वो इसकी तुलना में ये
बनता तो इन्वर्टेड ए भी है, लेकिन ये रियल होता है और ये वर्चुअल होता है। ये भी इन्वर्टेड है, ए डैश बी डैश। ये तो हो गया इसको किस तरह से ये प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ से हम देखते हैं, फिर इसको आगे पीछे करके हम एडजस्ट करते हैं कि हमको रिलैक्स आँख से देखना है यानी इन्फिनिटी पर बनाना है, या इसको इस पर यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाना है। इसका जो हमारा मैग्नीफिकेशन है उसको निकालने के लिए विजुअल एंगल ऑफ दी इमेज, जो फाइनल इमेज बनती है वो हमारी आँख पर कितना कोण सबटेंड करती है। द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज ऑन और आइस, वो यहाँ बीटा है, और एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एट आवर आइस। तो यद्यपि इसकी ये किरणें यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर अल्फा कोण सबटेंड करती हैं, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू द सेम एंगल बाय द सेम एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी पर वस्तु है वो उतना ही कोण हमारी आँख पर भी बनाएगी जितना यहाँ बनाएगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बहुत नज़दीक हैं इन कंपेरिजन टू द इन्फिनिटी। तो ये हुई हमारी आँख पर सबटेंड होने वाला एक तरह से समझिए ऑब्जेक्ट का एंगल है, और ये इमेज का एंगल है। तो ये तो हो गया हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन, एंगल का रेशियो है। टू फाइंड आउट द मैग्नीफिकेशन, चूँकि एंगल छोटे हैं इनको हम tan में चेंज कर सकते हैं। ये एंगल सारी स्मॉल, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा फ्रॉम हियर वी सी दैट दिस इज इक्वल टू AB अपॉन दिस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस, दैट इज UE। तो AB अपॉन UE निगेटिव है, और tan अल्फा इज इक्वल टू AB अपॉन द दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इसके इमेज की दूरी है यानी वी वो, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू FO, क्योंकि इसके फोकल प्लेन पर ही ये जा करके बनता है। तो ये VO अपॉन UE, इसको हम माइनस FO अपॉन U लिख सकते हैं, क्योंकि VO इज ऑलवेज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब चूंकि इसकी दो पोजिशंस हो सकती है, आइदर द फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एट इन्फिनिटी। इफ इट इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, देन दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू D, दिस फ्रॉम हियर टू D। तो ये अगर D है तो V की जगह हम D रख दें। तो इसके लिए जो हम फार्मूला लिखते हैं 1 अपान माइनस 1 अपान B माइनस 1 अपान UE इक्वल टू 1 अपान FE। इसमें V की जगह हमने D रख दिया, तो ये हो गया -1 अपान D प्लस 1 अपान UE माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 1 अपान FE। देयरफॉर 1 अपान UE इक्वल टू दिस 1 अपान FE बाहर निकाला तो आया 1 प्लस FE अपान D। ये 1 अपान UE की वैल्यू 1 अपान UE की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस comes out to be minus FO upon FE 1 plus FE upon D. This is the magnification when the final image is formed at least distance of distinct vision. Suppose the image is formed at infinity. अगर ये इन्फिनिटी पर इमेज हम लेते हैं, इसका मतलब कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस पर होगा। इसके फोकस पर होने के लिए UE मस्ट बी इक्वल टू FE। इसलिए इन्फिनिटी पर इसको बनाने के लिए V इक्वल टू इन्फिनिटी, इसकी जगह हमने इन्फिनिटी रख दिया इस इक्वेशन में, तो ये हो गया 1 अपान UE इक्वल टू 1 अपान FE। इन्फिनिटी बराबर 0, 1 अपान UE का मान हमने रख दिया इन इक्वेशन नंबर 1, 1 अपान UE इक्वल टू FE, दिस इक्वल टू माइनस FO अपान FE। तो दिस इज द मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो ये तो हो गया कि हमारे ये जो हमारे टेलीस्कोप और हैं, ये टेलीस्कोप में हमने लेंसों का प्रयोग किया है। वी यूज लेंसेज हियर। लेंसों की दो कमी रहती है। पहली कमी तो यह रहती है कि इससे
बहुत बड़ी इमेज नहीं बना सकते, क्योंकि लेंस बहुत बड़ा बना नहीं सकते। बहुत बड़ा लेंस अगर ढालेंगे तो इसके बीच में अगर कहीं भी एयर बबल रह जाएगा तो लेंसेज बेकार हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा लेंस का ढालना ये वेरी डिफ़िकल्ट। तो एक तो ये लेंस बहुत बड़े नहीं हो सकते। दूसरे जो रिफ्रैक्शन होता है, इसके अंदर जो इमेजेस बनती हैं वो बहुत साफ नहीं बनती। इसमें जो हमारा क्रोमेटिक एबर्शन है, स्फेरिकल एबर्शन है, यानी रंग बिरंगे प्रतिबिंब बनती हैं, उससे इंटेंसिटी कम हो जाती है। प्रतिबिंब की इंटेंसिटी इसलिए भी कम हो जाती है कि इसके किनारे से बनने वाला प्रतिबिंब इसके बीच से बनने वाला, द इमेज ड्यू टू द पायरेक्सियल रेज एंड ड्यू टू दिस मार्जिनल रेज इज एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वो बहुत सारे दोष रहते हैं व्हेन वी मेक द इमेज बाई रिफ्रैक्शन। इसलिए रिफ्रैक्शन से की जगह पर हम रिफ्लेक्टिंग टाइप का जो हमारा टेलीस्कोप है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। आइज जो हमारी आँख होती है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो भी एक ऑपरेटस है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। हम जानते हैं कि हमारी आँख में एक लेंस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ लेंस, और ये यहाँ पे सिलेरी मसल्स होती हैं जिसको खींच सकती हैं और उसको छोड़ सकती है। इसको खींच लेंगी पतला हो जाएगा, इसकी जो फोकल लेंथ होगी बड़ी हो जाएगी, छोड़ देंगी तो ये सिकुड़ जाएगा, उसकी फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी। इस तरह से फोकल लेंथ को छोटी बड़ी करके जो हमारी आँख का पीछे वाला भाग है जहाँ पर इसकी इमेज बननी चाहिए, जिसे हम रेटिना कहते हैं, इस रेटिना पर इमेज बनाने का काम ये हमारी आँख का लेंस इस सिलेरी मसल्स के द्वारा करता रहता है। और ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये अपने हिसाब से नज़दीक और दूर की वस्तु को का प्रतिबिंब यहाँ पर बना देती है और हम साफ साफ वस्तु को देख लेते हैं। वास्तव में अधिक से अधिक कितना इसको एक खींच सकते हैं, इसको अधिकतम खींच करके और इसकी अधिक से अधिक इसकी फोकस दूरी कर लेंगे, जिससे कि दूर से दूर की वस्तु अर्थात इन्फिनिटी की वस्तु को भी देखा जा सके। और इसी तरह से इसको जब इसको यानी छोड़ दें तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए तो सबसे नज़दीक की वस्तु को भी यहाँ पर हम देख सकें। ये जो सबसे निकट का पॉइंट होता है जिसे कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ आई, जिसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं, जो समानता हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। ये तो हुआ कि आँख हमारी समानता इस तरह से काम करती है। इसको कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि दूर के वस्तु को देखना है तो भी वो जो हमारी इमेज है वो रेटिना पर ही बनेगी। पीछे जा रहा होगा तो ये खींच करके उसकी फोकल लेंथ को कम करके और फिर फोकस को यहीं पर लाकर इमेज बनाएगी। तो इस प्रकार से जो हमारा लेंस है ये इसका खींचना यानी इसके सिलेरी मसल्स द्वारा इसका पतला हो जाना और इसका मोटा हो जाना, दिस इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये हमारी आँख के पावर ऑफ अकोमोडेशन है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हमारी आँख के सिलेरी मसल्स में कमजोरी आ जाए, या कभी कभी हमारी आँख का जो गोला है ये हमारी आई बाल ये एग्जैक्ट नहीं बैठूगा नहीं रहता, कभी कुछ टेढ़ा है, कभी इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई या कभी छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया, इनके बीच की दूरी। तो इस तरह से बहुत सारे डिफेक्ट्स हमारी आँख में आते रहते हैं। हमको ना आँख के डिफेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी करनी। एक तो आँख में डिफेक्ट आ जाता है कि हमारी ये विशेषता है कि हम दूर से दूर की वस्तु को भी देख लेते हैं। यानी ये कोई वस्तु बहुत ही दूर होगी, अगर वस्तु बहुत ही दूर हो तो उसका प्रतिबिंब भी आकर हमारी इस आई पर रेटिना पर बनता है। यानी ये जो हमारी आँख है इसका जो हमारा लेंस है ये इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज हैं इस प्रकार से इसके फोकल लेंथ को चेंज करता है कि ये हमारा इमेज आकर के यहाँ बन जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि इन्फिनिटी की आने वाली जो रेज होती हैं वो वहाँ तक नहीं जा पाती, ये अब बहुत ज़्यादा नहीं दब पाता और उसका इमेज यहीं बन जाती है। यानी इसके इन्फिनिटी वाला पॉइंट हमको दिखाई नहीं देता, ब्लड उसकी फिगर बनती है लाइक हियर। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब ये हुआ
कि जो हमारी इन्फिनिटी वाली देखने की पावर है वो शार्ट हो जाती है, वो निकट आ जाती है। अब यहाँ तक की वस्तु को तो हम साफ देख लेते हैं, लेकिन इसके आगे की वस्तु को हम नहीं देख पाते। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, हमारा जो पॉइंट है दूर का वाला वो यहाँ F पर आ गया। अब यहाँ तक अगर कोई चीज़ हो तो हम देखें, अगर दूर पर भी कोई वस्तु है लेकिन वो अगर उसका इमेज यहाँ पर बन जाए तो हम देख लें। तो इसमें क्या होता है कि जो इन्फिनिटी पर वाली वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमको यहाँ बनता हुआ दिखता है, यानी बनता ही नहीं, हमको दिखाई नहीं देता। अब हम कोई व्यवस्था करें कि ये इमेज जा कर के यहाँ बने। अब यहाँ पर रहे वस्तु, अब तो यहाँ बने, इसका मतलब इन्फिनिटी वाली जो वस्तु है उसका इमेज यहाँ बनना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसके लिए कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। कनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे तो इन्फिनिटी से जो आने वाली किरणें हैं वो इसको जो है वो उसको बाहर की ओर ये हमारी किरणें फैल जाएंगी और इस प्रकार ये इमेज इसके पीछे ये बन जाएगी, एक वर्चुअल इमेज इसकी बन जाएगी। चूँकि यहाँ पर F तक की वस्तु को हम देख लेते हैं, इसी के आगे की वस्तु को नहीं देख पाते। इसका मतलब हमारा जो इमेज की दूरी है वो यहाँ होनी चाहिए। अगर हमने ये लेंस प्रयोग किया, इस लेंस की जो फोकस दूरी हो इस प्रकार लें कि उसकी इमेज अगर यहाँ बन जाए तो हम इन्फिनिटी वाली वस्तु की इमेज यहाँ बन रही देख लेंगे। तो इसलिए इसमें इस दोष में मायोपिया में या शार्टेडनेस में, जिसमें कि हमारी इन्फिनिटी का पॉइंट शार्ट हो जाता है, नज़दीक आ जाता है, नियर टू द आई आ जाता है, द पॉइंट्स शिफ्ट्स टुवार्ड्स आई, जो इन्फिनिटी का पॉइंट है वो हमारी आँख के नज़दीक आ जाता है। और इसलिए इसके लिए हम कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या करता है कि जो किरणें जा रही हैं इनको डाइवर्ज कर दिया। अब जो किरणें ये डाइवर्ज हो गई, इस तरफ हो गई, तो जो इमेज यहाँ बन रही थी अब वो इमेज डाइवर्ज होने के बाद यहाँ पर आके बनने लगेगी और हमको दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये जो इसकी इन्फिनिटी वाली वस्तु है उसका यहाँ पर हमको वर्चुअल इमेज बन गई, वो हमको दिखाई देती है। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो हमारी आँख का दोष है। तो पहली आँख का दोष है दूर की वस्तुओं को हम साफ नहीं देख पाते। ज़्यादातर छोटे बच्चों में ये दोष आता है, 18 साल 20 साल के ऐसे बच्चों में ये पाया जाता है। अगर लेंस का प्रयोग किया जाए धीरे धीरे आँख ठीक हो जाती। एक दूसरे प्रकार का है जब हमारा निकट का पॉइंट दूर चला जाता है, यानी हम नज़दीक की वस्तु का हमारा जो इमेज है वो हमारी आँख के पीछे जाके बनता है, हमको दिखाई नहीं देता। हमारी आँख का पॉइंट तो ये है नियर पॉइंट, लेकिन नियर पॉइंट हमको दिखता नहीं है नज़दीक की चीज़, हमको यहाँ की चीज़ दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है। तो अगर यहाँ की वस्तु को देखना हो तो इसको हम यहाँ पर उसका इमेज बनाएं तो दिखे हमको। इसलिए हम ऐसे लेंस का प्रयोग करते हैं कि जिससे ये निकट वाले पॉइंट की इमेज दूर बन जाए और फिर हम उसको देख लेंगे। इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस, यानी हमारा जो निकट का पॉइंट है वो लॉन्ग हो गया है, दूर चला गया है, तो हमारी आँख से दूर चला गया। इसलिए हम इसके लिए कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। अब कन्वेक्स लेंस क्या करता है, ये हमारा पॉइंट है जिसको हम देख नहीं पाते, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा। इस ऑब्जेक्ट का क्या हुआ कि ये जो हमारा लेंस है इस लेंस ने इसको कन्वर्ज किया और ये कन्वर्ज करने के बाद ये इसका इमेज यहाँ पर बन गई। अब ये इमेज उस पॉइंट पर पहुँच गई जहाँ तक की वस्तु को हम देख सकते हैं, इसलिए हमको दिखाई देगी और साफ साफ हम नज़दीक की वस्तु को भी कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करके देख लेते हैं। ये सामान्यतः तब होता है जब हम किताब नहीं पढ़ पाते या अन्य तरह के दोष हम पे आ जाते हैं। तीसरा है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया कहते हैं कि जिसमें ये दोनों दोष आ जाते हैं, हम नज़दीक की हमारा निकट का पॉइंट भी दूर हो जाता है, दूर का पॉइंट भी निकट आ जाता है। न तो दूर की वस्तु को हम साफ देख पाते न नज़दीक की वस्तु को साफ देख पाते। तो दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए हमें कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम यानी बाईफोकल चश्मा बना लें जिसमें ऊपर और नीचे दो लेंस, जैसे इसमें एक नीचे भी लगा है ऊपर भी लगा है। नीचे वाला उत्तल लेंस लगा है जो इसकी दोष को दूर करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए, और मायोपिया को दूर करने के लिए ऊपर वाला लेंस रखा है। इसलिए प्रेसबायोपिया में इन दोनों लेंसों का साथ साथ प्रयोग होता है।
अगला दोष है एस्टिग्मेटिक्स। इसमें रहता है कि जो व्यक्ति है उसकी आँख से वर्टिकल चीज़ें दिखाई देंगी तो हॉरिजॉन्टल फिगर उसको नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देती देखेगा साफ साफ तो फिर वर्टिकल नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसके लिए जो सिलेंड्रिकल लेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह इन्हीं दो पर आते हैं। तो ये तो हो गया हमारे डिफेक्ट्स ऑफ आई। अभी दो जो हमारी आई के डिफेक्ट्स हैं इस संबंधित है, कुछ दो न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं। फार पॉइंट फॉर ए माइन इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द पावर ऑफ लेंस यूज टू रिमूव द डिफेक्ट। अब फार पॉइंट तो सामान्यतः इन्फिनिटी होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है, लेकिन यहाँ पर फार पॉइंट है 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्फिनिटी पर वस्तु है उसको 50 सेंटीमीटर पर अगर वो आ जाए तो हमको दिखाई पड़ेगी। तो यू तो इन्फिनिटी हुआ, लेकिन उस वस्तु का इमेज हमको 50 सेंटीमीटर पर बनाना है। तो इसके लिए 1/v - 1/u = 1/f। v का पता है हमें 1/50, बट फॉर यू इट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर वस्तु हमको उसको देखना है, तो लेंस कैसा चाहिए और उसकी पावर कितनी होगी, उसकी जो इमेज बनानी है वो इन्फिनिटी की वस्तु को हम दिखाई पड़े हमको आँख से, या हम 50 सेंटीमीटर तक ही देख पाते हैं, उसके आगे का नहीं देख पाते। इसका मतलब अगर 50 सेंटीमीटर में बन जाए तो इस इजीली उसको हम देख लेंगे। तो 1/50 - 1/infinity और माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी डजेंट मैटर, एंड दिस इज इक्वल टू 1/f। देयरफॉर f इज इक्वल टू, ये जो इमेज बनती है ये पीछे ही बनती है, उसी तरफ ये निगेटिव आती है। दिस इज इक्वल टू तो 50 इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस इज रिक्वायर्ड। कनकेव लेंस की जरूरत है। अब पावर कितनी होगी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसकी पावर हो जाएगी 100/f, 100 by -50 -2 डायोप्टर, -2 डायोप्टर ते हो गए। 2 डायोप्टर का कनकेव लेंस अगर हम प्रयोग कर लें तो इन्फिनिटी की वस्तु को आराम से 50 सेंटीमीटर तक भी अगर हमारी आंख देख लेती है तो हम आराम से देख लेंगे। इसी तरह यहाँ पे एक है कि ये नियर पॉइंट हमारा हट गया। नियर पॉइंट तो हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, तो समानता जो नियर पॉइंट है जहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए किसी वस्तु का इस समय, यानी d, तो v = d दैट मस्ट बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और लेकिन वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के वस्तु हमारा जो है नियर पॉइंट वो 40 सेंटीमीटर पहुँच गया। तो 40 सेंटीमीटर जो वाली जो वस्तु है दैट इज 40 सेंटीमीटर पर जो भी वस्तु होगी, तो 40 सेंटीमीटर की वस्तु को हम देख पाते हैं, 40 सेंटीमीटर की वस्तु को हम देख पाते हैं। तो 40 सेंटीमीटर की वस्तु को हम जब देख ले रहे हैं तो निकट की वस्तु को देखने के लिए, यानी जो वस्तु को हमने 25 सेंटीमीटर रखा है जो हम देख सकना चाहिए, वो हमारी दिखाई कितने पड़ती है 40 सेंटीमीटर, b = 40 सेंटीमीटर, दिस इज 25 सेंटीमीटर। तो 1/v 1/u 1/f, ये निगेटिव ये भी है, उसी तरफ बनती है इमेज, वो भी चित्र में हम लोगों ने बनाया था।
तो हो गया 1/v इज 40 सेंटीमीटर, u इज 25 सेंटीमीटर। तो हो गया 1/v 1/u इक्वल टू 1/f। Now -200 -5 8 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज टू रिमूव द डिफेक्ट। इसके लिए उत्तल लेंस 200/3 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस चाहिए, 200/3 सेंटीमीटर। इस उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो जो 40 सेंटीमीटर पर हमारा नियर पॉइंट चला गया है, हम फिर 40 सेंटीमीटर के पहले की भी वस्तुएं जो होंगे देख लेंगे, किताब पढ़ना, कापी पढ़ना, यानी चीज़ें इतनी भी है 25 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के बीच की जो भी चीज़ें होंगी उनको हम आराम से पढ़ लेंगे या देख लेंगे। दैट्स ऑल।